My dear friend, today we will start to learn about another fungus which name is Aspergillus and it is also called Eurotium. So first of all, you should know the systematic position of this fungus. It belongs to the kingdom Mycota and its division is Eumycota. Its subdivision is Ascomycotina. It belongs to the class Plactomycetes. Its order is Eurotiales or Aspergillales. Its family is Eurotiaceae or Aspergillaceae and name of the genus is Eurotium or Aspergillus. It is saprophytic fungus. Its mycelium is profusely branched, which is multinucleated and septate. Mycelium is septate, multinucleate, and it is hyaline in nature. The mycelium may consist of a similar type nucleus, the multinucleated condition. It may have homokaryotic condition or heterokaryotic condition. When similar type nucleus are found within the mycelium, within the hypha, then it is called homokaryotic. And when two matching type, one we have like female, other we have like male, such nucleus when present within the cell of the mycelium, then it is called heterokaryotic. This fungus is saprophytic. It is mostly found on our processed food material like prickle, jelly, jams, and it is also found on leather products. It can damage the leather product. The very common saprophytic species are Aspergillus niger, Aspergillus repens, Aspergillus flavus, Aspergillus candidus, and Aspergillus fumigatus. Generally, it is saprophytic fungus, but rarely it becomes pathogenic. It may cause diseases on animals as well as on plants. In animal, it causes aspergillosis, which is respiratory disease. It may causes this disease on the human being as well as on the other animals. In plants, in groundnut, it causes crown rot of groundnut, and on the cotton plant, it causes ball rot of cotton. This fungus secretes a toxin that is called aflatoxin. Aflatoxin is carcinogenic chemical which may causes the cancer. Other features of the aspergillus, that is the reproduction. It may reproduces by three methods: vegetative reproduction, asexual, and sexual reproduction. The vegetative reproduction takes place by the breakdown of this mycelium into several pieces. When this mycelium broken down by the external force into several pieces, then every piece is called fragment and may capable to develop the whole mycelium of aspergillus. Asexual reproduction takes place by the formation of conidia. So it develops conidia during the asexual reproduction, and asexual reproduction takes place during the favorable condition. During the formation of conidia, the mycelium develops a cylindrical, vertically growth of any cell, and this hypha becomes multinucleated and unbranched. This is called conidiophore, and base of the conidiophore, this is called foot cell. After some time, the tip of the conidiophore, it develops a vesicle-like structure. This vesicle-like structure differs in shape. In the shape of this vesicle differs. It may be oval or globose or club shape or elongated. Here
This vesicle after some time develops finger-like projection. These finger-like projections are called sterigmata. In Aspergillus, this sterigmata is found in three layers. Primary sterigmata is here and secondary is the here. Some species also develops the tertiary sterigmata. And finally, at the tip of the sterigmata, a chain of conidium is seen here. So, at the tip of the sterigmata, the development of conidia takes place. The conidia develops from this point, and the development of conidia is exogenous. The oldest conidia is situated at the top, and the youngest is situated at the base. So, this type of arrangement of the conidia is called basipetal arrangement or basipetal manner. After the maturation of these conidia, they separated from each other. Every conidia gets separated, and these are carried by the air current, and through the air its dispersal takes place. It blows with the air and reaches on its suitable substratum, and then it starts to germinate and form the new mycelium of the Aspergillus. Now look here, the conidium is unicellular. This conidium is unicellular, and its outer wall is thick and echinolate, means spine-like projection develops on the outer wall, while inner wall is smooth. So it is unicellular, uninucleate, and its outer wall is echinolate, having spine-like projection. During the germination, the outer wall broken down and inner wall develops tube-like structure that is called germ tube. This is called germ tube, and after some time it grow more and more, and finally it develops the mycelium of the Aspergillus or Eurotium. Here it is monokaryotic, but here it becomes multinucleate because every nucleus shows karyokinesis. A single nucleus is converted into multinucleated condition. So in this way you have seen here asexual reproduction in case of Aspergillus or Eurotium. बच्चों, मैंने आपको आज यूरोटियम के बारे में पढ़ाया, एस्परजिलस के बारे में पढ़ाया, और ये एस्परजिलस, इस फंगस को एक इटालियन बॉटनिस्ट ने डिस्कवर किया था। वहाँ क्रिसमस डे के दिन एक स्प्रिंकलर से हॉली वाटर, पवित्र पानी, सभी दर्शनार्थियों को जो चर्च में पूजा करने जाते हैं उनके ऊपर पादरी स्प्रे करते हैं। तो जो स्प्रिंकलर था उसका शेप ऐसा ही था। तो जब बॉटनिस्ट ने ऐसा स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्होंने कहा, अरे ये तो स्प्रिंकलर की तरह है, और इटालियन भाषा में इसे एस्परजिलस बोलते हैं, इसीलिए इस फंगस का नाम एस्परजिलस पड़ गया। एस्परजिलस सैप्रोफिटिक फंगस है, ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर पाया जाता है, ये सैप्रोफिटिक है, और ये इसकी कुल 130 स्पीसीज पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। भारत में इसकी 30 स्पीसीज पाई जाती हैं। इसका माइसीलियम प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है और बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। इसका माइसीलियम सेप्टेट होता है, बीच में क्रॉस वॉल पाई जाती है। इसकी प्रत्येक सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। इसमें रिप्रोडक्शन 3 मेथड से होता है, फ्रेगमेंटेशन, कोनिडिया का फॉर्मेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथेरिडियम और फीमेल को एस्कोगोनियम कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्रूटिंग बॉडी इसकी बनती है ग्लोबोज होती है, कम्प्लीटली क्लोज होती है, जिसे हम क्लिस्टोथीसियम कहते हैं। इसी क्लिस्टोथीसियम में एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इस तरह इस फिगर से हम देख सकते हैं कि इन
यूरोटियम में या एस्परजिलस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। आइए हम देखें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जब ये माइसीलियम मैच्योर हो जाता है, कोई भी एक सेल सुपरफिशियल हो जाती है और वर्टिकली ग्रो करती है, जिसमें लेटरल ब्रांचेस डेवलप नहीं होती हैं, अनब्रांच्ड होता है, सिलेंड्रिकल होता है, जिसे हम कोनिडियोफोर कहते हैं, और इसकी बेसल सेल को हम फूट सेल कहते हैं। कोनिडियोफोर का जो टिप होता है ये वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जो कई शेप में अलग अलग स्पीसीज में पाया जाता है। इसके टर्मिनल पार्ट पर चारों ओर, इस वेसिकल के चारों ओर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप हो जाता है, जिसे स्टेरिगमाटा कहते हैं। स्टेरिगमाटा के टिप पर चेन ऑफ कोनिडिया डेवलप करती है, जो ओल्डेस्ट कोनिडिया होती है सबसे बाहर की ओर होती है, यंगेस्ट जो होती है सबसे अंदर की ओर होती है। जब इस तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है, जब इस तरह का अरेंजमेंट हो कि यंगर नीचे हो, ओल्डेस्ट ऊपर हो, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम वेसिपिटल मैनर कहते हैं। कोनिडिया हवा द्वारा उड़ा ली जाती है और सुटेबल सबस्ट्रेटम पर जब जाकर गिरती है और इन्वायरमेंट फेवर करता है ग्रोथ को, एट दैट टाइम ये कोनिडिया फिर से डेवलप करके नए माइसीलियम को जन्म दे देती है। यहाँ कोनिडिया को हमें समझना होगा कि माइसीलियम तो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, लेकिन कोनिडिया हमारी यूनिसेलुलर है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, जिसकी बाहरी वाल आप स्वयं देख सकते हैं बहुत मोटी है, इचिनुलेट है यानी कांटेदार है, और इनर लेयर स्मूथ होती है। जर्मिनेशन के समय आउटर वॉल फट जाती है और इनर वॉल एक जर्म ट्यूब के रूप में आगे बढ़ता है, मोनोकैरियोटिक हाइफा का डेवलपमेंट करता है, जिसके बाद प्रत्येक सेल में कैरियोकाइनेसिस होती है और मोनोकैरियोटिक कंडीशन मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह आज आपने पढ़ा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूरोटियम और एस्परजिलस। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्परजिलस। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और आपको ये समझ में आता है तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के बीच में इसे शेयर करें, और यदि आपकी कोई क्वेरी है, कुछ आप समझना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी बातें अवश्य लिखें। थैंक यू। Life cycle of the Aspergillus. This is the next genus which is included in your course. The name of the fungus is Aspergillus. Previously it was called Aspergillus and presently it is known as Eurotium. So first of all, you should know about the systematic position of the Aspergillus. It belongs to the kingdom Mycota, division Eumycota, subdivision Aspergillina, and class is Lactomyces. Order is Eurotheres or Aspergillus. Family name is Aspergillaceae and name of the genus is Aspergillus Eurotium. It is a saprophytic fungus, and in previous classes I have told you that on the basis of mode of nutrition we can classify the fungi into three categories: parasitic fungus, saprophytic fungus and symbiotic fungus. So this Aspergillus, it is saprophytic in nature. Saprophytic in nature means it grow on dead organic material. जो भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है उसी पर ये ग्रो करता है। एंड यू कैन सी दिस फंगस ऑन द जेन, ऑन द पिकल मीन्स अचार, जेली, जो कुछ भी खाने पीने का सामान घर में होता है प्रिजर्व करके रखा जाता है, एक दिन बनाया जाता है और कई दिनों उसका उपयोग होता है। ऐसी चीज़ों पर ये ग्रो कर जाता है, या बेल्ट पर ग्रो कर जाएगा। बरसात में आपने अपने पर्स को कहीं रख दिया है और ध्यान से नहीं उसको साफ वाफ किया तो उस पर ग्रो कर जाएगा। और एस्परजिलस बहुत ही कॉमन फंगस है। यू कैन सी इन एवरीवेयर वेयर डिकम्पोजिंग मटेरियल आर प्रेजेंट।
So it is a saprophytic fungus. It is represented by 130 species. कितनी species हैं इसकी? 130. In all the world, total species of the Aspergillus all over the world is 130 species, in which only 30 species are found in our country. हमारे भारतवर्ष में कितना पाया जाता है? इसकी 30 स्पीसीज पाई जाती हैं. एंड द मेन कॉमन स्पीसीज ऑफ द एस्परजिलस इज द, इसकी कॉमन स्पीसीज का क्या है? एस्परजिलस नाइगर. सबसे पहले ये समझना होगा कि इट इज सैप्रोफिटिक फंगस. कैसा फंगस है? सैप्रोफिटिक. पॉइंट हम कैसे बनाएंगे? हम लिखेंगे मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एस्परजिलस. तो पहला कैरेक्टर मैंने क्या बताया कि इट इज सैप्रोफिटिक. कैसा है? सैप्रोफिटिक. इट इज सैप्रोफिटिक इन नेचर. पहला कैरेक्टर हो गया, ये सैप्रोफाइट है, यानी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर पाया जाता है. जैसे जेम्स पे हमने बताया, जेलीज पर ग्रो करता है, चटनी पर ग्रो कर जाता है, अचार प्रेकल जो आपके घर में बनाया जाता है, प्रेकल पर यानी अचार के ऊपर ग्रो कर जाता है. इसकी ग्रोथ आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं. अगर कोई चीज़ अच्छी तरह नहीं रखी गई, इसका केयर नहीं किया गया, उसमें प्रिजर्वेटिव अच्छी तरह नहीं डाला गया है, तो उसमें एस्परजिलस की ग्रोथ हो जाती है. एस्परजिलस इज सैप्रोफिटिक. चमड़े के सामान पे भी बहुत तेजी से ग्रो करता है. वेरी फास्ट ग्रोइंग फंगस है. एक ही दिन में देखोगे जरा सा थोड़ा सा बिल्कुल स्पॉट, दूसरे दिन ऑब्जर्व करोगे पता लगेगा बहुत बड़ा एरिया इसने कवर कर लिया. इट मीन्स वेरी फास्ट ग्रोइंग फंगस इज द एस्परजिलस. दूसरा इसका क्या कैरेक्टर है? इट्स माइसीलियम. माइसीलियम कैसा है इसका? माइसीलियम हम कैसा देख रहे हैं? प्रोफ्यूजली ब्राउन. प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है. अगला कैरेक्टर क्या देख रहे हैं हम? सेप्टेट है. सेप्टेट है. नेक्स्ट कैरेक्टर क्या देख रहे हैं हम? हायालाइन है. हायालाइन है. और अगला कैरेक्टर क्या देख रहे हैं हम? मल्टी न्यूक्लिएट है. एक और कैरेक्टर हम देखते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन. होमोकैरियोटिक होता है. होमोकैरियोटिक और हेटेरोकैरियोटिक, यानी होमो भी होता है और हेटेरो भी होता है. दोनों कंडीशन में इसका थैलस हमको, इसका माइसीलियम हमको दिखाई पड़ता है. अब ध्यान दीजिएगा, लुक हियर, दिस इज द माइसीलियम. जहाँ कहीं ये ग्रो करेगा उस एरिया में हम देखेंगे तो हमको ऐसे बिल्कुल बिल्कुल जाल ऐसे फैला ये दिखाई देगा. और माइक्रोस्कोप में जब हम इसे देखते हैं देन वी विल फाइंड दिस टाइप स्ट्रक्चर. लुक हियर, दिस इज द माइसीलियम. मैंने माइसीलियम का बहुत छोटा सा पार्ट बनाया है. अगर इसे बनाए पूरे इस पर तो एक जाल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देने लगेगा. माइसीलियम इज नट लाइक स्ट्रक्चर. देखिए ये क्रॉस कर रहा है ना यहाँ, ऐसे ही बहुत सारे माइसीलियम. ऐसा भी हो सकता है एक माइसीलियम इधर से ऐसे ऐसे ग्रो कर जाए, ऐसे कोई माइसीलियम इधर से ऐसे आ जाए. तो बताओ नेट लाइक स्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है ना? यस मैम. तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है. इसका जो हाइफा होता है वो कैसा होता है? देखिए सेप्टेट होता है. हमने क्रॉस वॉल बनाई. ये क्रॉस वॉल क्या बता रही है कि ये कैसा माइसीलियम है? ये सेप्टेट माइसीलियम है.
इसमें सेप्टा पाया जाता है। और दूसरी बात क्या है कि पहले प्रारंभिक अवस्था में, अर्ली स्टेज में, हर सेल इसकी हमको यूनी न्यूक्लिएट दिखाई देगी, बट लेटर ऑन इट बिकम्स मल्टी न्यूक्लिएटेड ड्यू टू कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस के बार बार डिवीजन होने के कारण ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा। तो क्या होगा, देखो एक ही सेल में, बताओ मैं क्या कर रही हूँ, अब एक ही सेल में कई कई न्यूक्लियस है, यानी ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर यहाँ हमको दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं इसकी प्रत्येक कोशिका में ढेर सारे न्यूक्लियस हमको दिखाई देते हैं। जब एस्परजिलस जिस भी सबस्ट्रेटम पर ग्रो कर रहा है, उस सबस्ट्रेटम से न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करता है, और देखो ढेर सारा न्यूट्रिशन ये अब्सॉर्ब करेगा। जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज़्यादा ये अपनी ब्रांचेस निकाल के पूरे एरिया को कवर कर लेता है। जब माइसीलियम मैच्योर हो चुका होता है, इसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो किस रूप में जमा होता है, ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में। और ये जब मैच्योर हो चुका होता है तो अगला पेज होता है रिप्रोडक्शन। एंड आई हैव टोल्ड यू दैट द रिप्रोडक्शन may be of three type in case of fungi: vegetative reproduction, asexual reproduction, and sexual reproduction. One thing more here, I have told you that the mycelium is profusely branched, बहुत ज़्यादा ब्रांचेज पाई जाती हैं। दूसरा मैंने क्या कहा, सेप्टेट माइसीलियम है। देखो बार बार मैं बोल रही हूँ, सेप्टा बनाया है बीच में, और न्यूक्लियस इसका ये। अब तो सेप्टा दिख रहा है आपको, देखिए सेप्टा दिख रहा है। यहाँ यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखाई दे रहा है, ये यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। अगली चीज क्या लिखा है, हाइलाइन। हाइलाइन मीन्स होता है क्लियर, हाइलाइन मीन्स होता है कलरलेस, ट्रांसपेरेंट। तो इसका माइसीलियम को कैसा दिखाई देगा माइक्रोस्कोप में, ट्रांसपेरेंट हाइलाइन दिखाई देता है। जब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में पहुंच जाता है तो होमोकैरियोटिक भी हो सकता है और हेटेरोकैरियोटिक भी हो सकता है। यानी ये जितने भी न्यूक्लियस सेल में दिखाई दे रहे हैं, ये सारे न्यूक्लियस एक जैसे भी हो सकते हैं। अगर एक ही जैसा एलियन सबके पास है, सबके जीन में सिमिलरिटी है, अगर ऐसे न्यूक्लियस हैं तो हम कहते हैं होमोकैरियोटिक। और जब दो प्रकार के न्यूक्लियस हों, यानी उनके एलिन में अंतर आ गया, जीन में अंतर आ गया, वन बिहेव लाइक मेल, अदर बिहेव लाइक फीमेल, तो उसे बोलते हैं हेटेरोकैरियोटिक। हेटेरोकैरियोटिक कंडीशन, या ये समझ में आया आपको? एक होमोकैरियोटिक है और एक हेटेरोकैरियोटिक। जब ये मैच्योर हो चुका तो रिप्रोडक्शन करेगा। तीन मेथड, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी एस्परजिलस may reproduces by three method: asexual, sexual and vegetative. So vegetative reproduction in aspergillus is very common type. सबसे कॉमन टाइप का रिप्रोडक्शन कौन सा है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। देन asexual reproduction, and during the scarcity of the food material, जिस सबस्ट्रेटम पर ये ग्रो कर रहा है, अगर वहाँ भोजन की कमी हो गई है, then it reproduces sexually, and the sex organs, it can develop the sex organs. The male sex organ of aspergillus is called antheridium and the female one is called ascogonium. यानी पहला ऐसा फंगस आपने पढ़ा, जितना भी अभी तक आपको पढ़ाया गया, आज पहली बार आप सुन रहे हैं कि इसका मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा तो उसे एंथेरिडियम बोलेंगे, और फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा तो उसे एस्कोगोनियम बोलेंगे। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, देखो ये सारे हम इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही बता रहे हैं, जगह नहीं बची है इसलिए केवल बोल के समझा रहे हैं। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो हम यहाँ फिर बना के फिर आपको दिखा देंगे। इसका जो सेक्स ऑर्गन होता है वो
एंथेरिडियम और एस्कोगोनियम। दोनों के बीच में प्लाज्मोगैमी होगी, कैरियोगैमी होगी, और कैरियोगैमी होने के बाद फ्रूटिंग बॉडी का डेवलपमेंट होता है। एस्परजिलस की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है जस्ट लाइक फुटबॉल की तरह दिखाई देती है। जैसे फुटबॉल के अंदर एयर भरी है लेकिन क्या तुम देख पाते हो, चारों ओर से बंद, ऐसे ही इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है जस्ट लाइक फुटबॉल बॉल, फुटबॉल की जो बॉल होती है। और ऐसी फ्रूटिंग बॉडी को जो चारों ओर से क्लोज हो हाइफा के द्वारा और अंदर उसके एस्कस पाया जाए और इसको स्पोर्स हो, तो ऐसी फ्रूटिंग बॉडी को कहा जाता है क्लिस्टोथीसियम। याद कर लीजिए, क्लिस्टोथीसियम आपसे एग्जाम में शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा। व्हाट इज क्लिस्टोथीसियम? देन यू हैव टू राइट क्लिस्टोथीसियम इज द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ द एस्परजिलस। बिल्कुल गोल होता है एंड कंप्लीटली क्लोज। Inside the clistothecium, the ascus and ascospores are found. Now look here. Vegetative reproduction takes place by fragmentation. I have told you that during the vegetative reproduction, when fragmentation takes place, the mycelium broken down into several pieces, and each piece of the aspergillus is called fragment, and having the capacity to develop the new mycelium of the aspergillus. मैंने आपसे यही कहा कि अनुकूल परिस्थिति में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि बाहर से कोई फोर्स लग जाए उसके ऊपर और कई खंडों में वो टूट जाए, तो प्रत्येक खंड को हम फ्रेगमेंट कहते हैं और धीरे धीरे फ्रेगमेंट नए माइसीलियम में बदल जाता है। ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन इट आल्सो डेवलप्स द कोनिडिया। So we can say the asexual production in case of aspergillus takes place by the formation of conidia. Look here, this is the conidia. ये क्या है? Conidia. कॉनिडिया। ये पूरे सभी को मिला के कॉनिडिया बोलेंगे। एक अकेला यहाँ बनाया है तो कोनिडियम बोलेंगे। देखो दोनों सेम है लेकिन ढेर सारे हैं। प्लूरल फॉर्म में बोलेंगे हम कॉनिडिया और सिंगुलर फॉर्म में बोलेंगे कॉनिडियम। अब हम यहाँ देखते हैं जब माइसीलियम हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा था सबस्ट्रेटम पर, लेकिन जब इसने आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू किया एट दैट टाइम इट ग्रो वर्टिकली, ऊपर बढ़ने लगा जैसे पौधे बढ़ते हैं। तो ऊपर इरेक्ट फॉर्म में जो बढ़ रहा है वो अनब्रांच दिखाई दे रहा है। यहाँ से कोई ब्रांच नहीं है ब्रांच? No. तो दिस अनब्रांच वर्टिकली ग्रो स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉनिडियोफोर। इसको कहेंगे This is called conidiophore and at the tip of the conidiophore, अब देखो मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये तो है जर्मिनेटिंग कॉनिडिया। देखो यहाँ बना के दिखाती हूँ। ये देखो पहले ग्रो ऐसे कर रहा था, ये ऊपर की ओर ग्रो कर रहा था। पहले ये ऐसा था, पहले ऐसा था, यूं ग्रो कर रहा था। धीमे धीमे ऊपर की ओर इसने क्लब लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया और ये क्लब लाइक स्ट्रक्चर धीरे धीरे ऐसे स्ट्रक्चर से स्फेरिकल राउंडेड स्ट्रक्चर में बदल जाता है। तो ये राउंडेड स्ट्रक्चर जो बना कहाँ से बना? टिप ऑफ द कोनिडियोफोर। समझ में आया? कोनिडियोफोर ऊपर ऐसे बढ़ रहा था, ये मेरी उंगली बढ़ रही है और यही एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाए। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वेसिकल। इसको हम क्या कहते हैं? वेसिकल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड वेसिकल। और वेसिकल के चारों ओर हमको क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं इस
स्टेरिगमाटा या पैलेट, पैलेट बोलेंगे या स्टेरिगमाटा बोलेंगे। और स्टेरिगमाटा के टिप पर कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहली कोनिडिया कहाँ बनेगी? टिप ऑफ द स्टेरिगमाटा। और फिर यहाँ पर दूसरी कोनिडिया, फिर तीसरी कोनिडिया। तो जो पहली कोनिडिया बनी थी वो कहाँ चली जाएगी? इधर। अगर यहाँ से बार बार नई कोई सेल बन रही है, नया कोई राउंड स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप हो रहा है, मेरी इस उंगली के ऊपर राउंडेड कोई स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और फिर नीचे से दूसरा निकल रहा है, तो जो पहले बना था ऊपर जाएगा कि नहीं? और वो ज्यादा विकसित हो जाएगा कि नहीं? तो देखो सबसे बाहर की ओर जो भी कोनिडिया है, हम उस कोनिडिया को क्या देख रहे हैं? दैट इज लार्जर इन साइज, यानी ओल्डेस्ट इज हियर, यंगेस्ट इज हियर। जो यंगेस्ट कोनिडिया है टचेस द वॉल ऑफ द स्टेरिगमाटा, और जो सबसे बड़ी कोनिडिया है दैट इज ऑन डिस्टल साइड। एंड दिस मैनर ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द कोनिडिया इज कॉल्ड बेसिपिटल मैनर। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं बेसिपिटल अरेंजमेंट। बेसिपिटल अरेंजमेंट किसे कहते हैं? जब ओल्डेस्ट कोनिडिया इज सिचुएटेड एट द टॉप एंड यंगेस्ट कोनिडिया इज सिचुएटेड एट द बेस। छोटी कोनिडिया नीचे और बड़ी कोनिडिया ऊपर हो, तो ऐसे अरेंजमेंट को बेसिपिटल अरेंजमेंट कहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड है। यहाँ देखो ये कोनिडिया फ्लोर इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये वेसिकल भी रही होगी मल्टी न्यूक्लिएटेड, लेकिन वेसिकल से ढेर सारे आउटग्रोथ डेवलप हुए जिन्हें हमने स्टेरिगमाटा कहा। तो सभी स्टेरिगमाटा में एक एक न्यूक्लियस चले गए। देखा आपने, ढेर सारे न्यूक्लियस थे, सभी जगह एक एक न्यूक्लियस चले गए। और जब चले गए तो यहाँ न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस ने माइटोसिस किया, दो न्यूक्लियस बनाया, एक रहेगा इसके अंदर और एक यहाँ आ जाएगा। समझ में आया? फिर ये डिवाइड करेगा, फिर एक और नई कोनिडिया बनेगी, उसमें चला जाएगा और एक अंदर रहेगा। इस तरीके से बार बार डिवीजन होता रहता है और यूनिन्यूक्लिएट कोनिडियम का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो यूनिन्यूक्लिएटेड कोनिडिया, ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, स्फेरिकल है, यूनिसेलुलर है, यूनिन्यूक्लिएटेड है और इसकी बाहरी वॉल इचिनुलेट है। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा एट दैट टाइम आउटर वॉल ब्रोकन डाउन, बाहर की वॉल हट जाएगी और अंदर की वॉल जर्म ट्यूब के रूप में बाहर निकल जाएगी और बाहर निकल कर फिर दूसरे माइसीलियम को जन्म दे देगी। यहाँ ये यूनिन्यूक्लिएटेड है और धीरे धीरे जब ये एडल्ट हो जाएगा तो प्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, यानी कैरियोकाइनेसिस होगी और यूनिसेलुलर सेल मल्टी सेलुलर सेल में बदल जाएगा।